Hi students, good morning. Myself Rajput Pratima. How are you? I hope you all are fine and safe in your home. Please take care of yourself. Students, I miss you too much. And today's date 9/9/2020, Wednesday, and I am going to explain chapter 6 of English Standard 8. Chapter 6, The Geordie's Fawn. And I am at last second paragraph. It is an interesting story of Geordie and a little fawn. A little child of a sea deer. In this story, Geordie's father is bitten by a rattlesnake. He quickly kills the doe and uses its heart and liver to draw out the poison. And Geordie wonders what will happen to the little fawn left without its mother. इस स्टोरी में जो कि जॉडीज फॉन एंड द स्टोरी रिटन बाय मार्जोरी कीनन रॉलिंग्स. It is an interesting story of a sea deer and her fawn. इस स्टोरी में जॉडी के फादर को एक स्नैक बीट करता है एंड देन उस पॉइजन को बाहर निकालने के लिए वो एक हिरन सी डियर के हार्ट और लीवर का यूज़ करते हैं. तो इस वजह से उन्हें उस सी डियर को मारना पड़ता है. बट उस सी डियर के एक छोटा सा बच्चा होता है, अ लिटल फॉन. तो देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ सी डियर उस लिटिल फॉन का क्या होता है, उसके पीछे जॉडी कितना सफ़र करता है, इस चीज़ के बारे में स्टोरी है. नाउ लास्ट सेकेंड पैराग्राफ. पेनी टर्न्ड हिज हेड एंड जॉडी स्टूड बिसाइड हिम. जॉडी पेनी के बगल में खड़ा था. द फॉन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम. इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज आइज वीयर एज ब्राइट एज द फॉन. फॉन और बॉय मीन्स जॉडी दोनों की आईज सेम ब्राइट थी एंड बोथ आर नियर टू पेनी एंड ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम. और पेनी ने कहा आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें वो फॉन मिल गया. जॉडी देन वेंट टू द किचन. देन जॉडी वेंट टू द किचन. जस्ट the skin was so soft and clean of the fawn and it did not kick as he could until he came to the intersection with the road home. When tired, he set it down and rested for a while. ऐसे धीरे धीरे कुछ रेस्ट करते हुए, कुछ चलते हुए वो लिटिल फॉन जॉडी के घर पे आ गया था. एंड Geordie carried it in his arms for some distance. Finally, he reached home and took the fawn into his father's room. Penny was glad to see it and Geordie gave it milk to drink. Okay, now Geordie gave a pan of morning's milk stood in the kitchen safe. The cream had risen on it. He skimmed the cream into a jug and he poured milk into a small gourd and he held it out of the fawn. फिर वो मिल्क लेके फॉन के पास गया. It butted it suddenly, some smelling the milk. He saved it precariously and from spilling over the floor. It could make nothing to the milk in the gourd. Okay,
फर्स्ट टाइम तो उसे थोड़ा अजीब लगा फॉन को, बिकॉज इट वॉज नॉट हैबिचुअल बाय मिल्क. सो he dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. Then जॉडी ने ट्राई किया कि उसे कैसे दूध पिलाया जाए. अपने फिंगर्स को उसने मिल्क में डिप किया और डिप करने के बाद में फॉन के सॉफ्ट माउथ पर रखा उसने फिंगर्स को. It sucked greedily. When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. He dipped his fingers again and as fawn sucked. And then same process उसने फिर से repeat किया. किसने? जॉडी ने. He lowered them slowly into the milk and the fawn blew and sucked and snorted. It stamped its small hoofs impatiently as long as he did. He held his fingers below the level of the milk and the fawn was content. Then fawn ने मिल्क पीना स्टार्ट कर दिया. It closed its eyes dreamily. उसने अपनी आइज़ क्लोज कर ली. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. और जॉडी बहुत अच्छी फीलिंग जॉडी को आ रही थी. एंड हिज स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ. और उसकी स्मॉल सी जो टेल थी वो मूवमेंट कर रही थी. द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ स्विल ऑफ फॉर्म एंड गगलिंग. देन उसने सारा मिल्क फिनिश कर दिया और इससे जॉडी को बहुत हैप्पी फीलिंग आई. ओके स्टूडेंट्स, ही डिप्ड हिज फिंगर्स इनटू द मिल्क एंड लेट इट सक. फिंगर्स डिप करके उसके मुंह पर लगाता गया और इस तरह से फॉन ने सारा मिल्क फिनिश कर दिया. देन इट ड्रैंक ऑफ द लास्ट ड्रॉप ऑफ मिल्क. लास्ट ड्रॉप भी मिल्क का फिनिश कर दिया. एंड जॉडी वॉज हैप्पी नाउ. अब जॉडी बहुत खुश था. तो ये जॉडी और एक लिटिल फॉन की इंटरेस्टिंग स्टोरी है. नाउ exercise of the chapter. First, comprehension check. How did Jody bring the fawn back home? Okay. Answer. Jody उस fawn को back home means वापस घर पर कैसे लाया? Jody picked up. First question is, Jody picked up the fawn into his arms and proceeded to home. After some distance, he kept the fawn down and took rest, and later on the fawn followed him. Thus he brought the fawn back home. Okay students, फर्स्ट जॉडी ने उसे अपनी आर्म्स में बाहों में उठाया घर पर लाने के लिए. आफ्टर सम डिस्टेंस ही केप्ट द फॉन डाउन एंड टुक रेस्ट. जब उसे ऐसा फील हुआ कि वो इससे काफ़ी थक चुका है, देन वो उसने कुछ डिस्टेंस उसे चलाया भी और फिर कुछ डिस्टेंस गोदी में ले लिया. इस तरह से वो उसको अपने घर पर लाया. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. Second question is, Jody was filled with emotion after he found the fawn. fawn जब उसे मिला तो काफ़ी उसके अंदर इमोशंस थे उसके लिए. Can you find at least 3 words or phrases which show how he felt? क्या आप उस फ्रेज से, उस पैराग्राफ से 3 words लिखेंगे
जिससे ये पता चल रहा है कि उसको उस फ़ॉन के लिए काफ़ी इमोशन था. नाउ आंसर नंबर 2. यस, उसे उस फ़ोन से काफ़ी इमोशन था. उसके लिए 3 लाइन्स देखिए. द फोन shook him through with the stare of its liquid eye. Second, the touch of the phone made him delirious. And third is as though the phone were a China deer. Okay, now third number is question number 3. How did the deer drink milk from the gourd? Jody dipped his fingers in the milk. कैसे पिया उस लिटिल फॉन ने दूध? मिल्क कैसे ड्रिंक किया? So answer number 3 is Jody dipped his fingers in the milk. Then he left the fawn suck his fingers. He did so several times, and finally the fawn drank off all the milk from the gourd. Now next question is 4 number. Why didn't the fawn follow Jody up steps as he had thought it would? Okay. जॉडी के हिसाब से फॉन पैर आगे क्यों नहीं रख रहा था? बिकॉज द फॉन डिडंट नो. उस लिटिल फॉन को कुछ भी नहीं पता था कि स्टेप्स आगे कैसे रखने हैं, दूध कैसे पीना है, ये सब उसे कोई नॉलेज नहीं था. बिकॉज इट इज़ सो यंग, इसलिए उसे कुछ भी नहीं पता चल रहा था. सो दैट द फॉन डिडंट नो हाउ टू रेज its feet to climb the steps. Okay students, done. Now working with the text. Textual question answer of exercise. Question number 1. Why did Penny Boxster allow Jody to go find the fawn and raise it? Okay, now answer number 1 is Penny, father of Jody, was convinced by Jody's argument and it would be ungrateful if they left the fawn in the forest, starve, and he realized that Jody was right. और जॉडी के फादर पेनी बैक्स्टर ने जॉडी को अलाउ क्यों कर दिया कि वो जाए फ़ोन को ढूंढ के लाए? ऐसा बिकॉज ऑफ पेनी ने उन्हें कन्विंस किया कि ये अनग्रेटफुल चीज़ है कि हम उस फ़ोन को अकेले छोड़ दें, हम उस हिरन के बच्चे को अकेला छोड़ दें, ये अनग्रेटफुल होगा. So that Penny allowed Jody to find the fawn and raise it. Okay. Now second number is there.
Question number 2. What did Doc Wilson mean when he said nothing in the world ever comes quite free? Second question. Answer of the second is Doc Wilson meant that Penny must pay back to the doll whom he had killed for his own gain by bringing of her fawn. डॉक विल्सन ने ऐसा क्यों कहा कि नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री? इस वर्ल्ड में, इस संसार में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है. क्यों कहा? बिकॉज जॉडी को उस फ़ोन की देखभाल करनी चाहिए. वाई? बिकॉज ऑफ जो फ़ोन के मदर थे, जो सीड ईयर थे, उन्होंने जॉडी के फादर पेनी की जान बचाई अपने पार्ट्स देकर. सो दैट जॉडी के फादर का ये फ़र्ज बनता है कि वो उस लिटिल फ़ॉन की देखभाल करें, उसका पालन पोषण करें. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. Now question number 3. How did Jody look after the fawn after he accepted the responsibility for doing this? जॉडी ने फ़ोन की देखभाल कैसे की जब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि मैं उसको पाल पोस कर बड़ा करूँगा? देन उसने उस लिटिल फ़ोन की केयर कैसे किया? नाउ आंसर नंबर 3. जॉडी लुक आफ्टर द फ़ॉन लाइक अ मदर. एक मदर की तरह जॉडी उसे ट्रीट करता था, देखभाल उसकी करता था. ही मेड इट ड्रिंक मिल्क विथ हिज फिंगर्स डिप्ड इन मिल्क. उसने, जॉडी ने अपने फिंगर्स के थ्रू उसे दूध पीना सिखाया. शी गैस्प्ड विथ सरप्राइज बिकॉज शी डिडंट वॉन्ट टू सी एन एनिमल इन हर होम. शी गैस्प्ड सरप्राइज. जो उसके मदर थे उनको सरप्राइज हुआ. क्यों? क्योंकि वो किसी भी एनिमल को अपने घर पर नहीं चाहते थे. ओके स्टूडेंट्स. How does Jody's mother react when she hears that he is going to bring the little fawn home? Why does she react in this way? उसने इस तरह से क्यों अपने रिएक्शंस दिए जॉडी के मदर ने? Jody's mother turned her nose when she heard that he was going to bring back the fawn. She gasped with surprise because she didn't want to see an animal in her home. Okay students. आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी आई थिंक. एंड जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक है, वो आप लोगों को कंप्लीट करना है इन योर CW बुक. एंड कॉम्प्रिहेंशन चेक कंप्लीट करने के बाद, कॉम्प्रिहेंशन चेक इन योर होमवर्क बुक एंड वर्किंग विद द टेक्स्ट. जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है, वर्किंग विथ टेक्स्ट, ये आपको CW नोटबुक में लिखना है. डन. एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों की एग्ज़ाम कैसी गई वो बताना. और आप लोग अपने घर पर स्टडी कंटिन्यू रखो. एंड क्लास वर्क भी आप लोगों को कंप्लीट करनी है, क्योंकि कभी भी हम क्लास वर्क लेकर आप सबको बुला सकते हैं कि आप लोग क्लास वर्क लेकर आइए और चेक कराइए. सो दैट नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको अपनी क्लास वर्क लिखनी है और उसे चेक भी करवाना है. ओके. ओके स्टूडेंट्स.
Good afternoon. Goodbye.